Good morning, my dear students of class 6 and 7। एक मुद्दत के बाद आप लोग के बीच में हम जुड़े। इसके लिए सबसे पहला नंबर आप लोग को आप लोग का आभार भी व्यक्त करते हैं कि बीच में आप लोगों ने जैसे तैसे जिस तरह से भी हुआ आप लोगों ने अपना पढ़ा देखा। अभी जो हम लोग पूरी दुनिया पूरे विश्व परेशान है इस वैश्विक महामारी से। दुर्भाग्य है कि हम इस महामारी के चलते अपने घर में रह कर के पढ़ रहे हैं और सौभाग्य की बात यह है कि हमारे माननीय निदेशक महोदय के द्वारा व्यवस्था कराई गई है कि ताकि हम आपको घर में पढ़ा सकें। आप लोग से एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें क्योंकि ये कोविड-19 एक बीमारी नहीं है, ये महाबीमारी है और इस महामारी में हमें डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन से बार बार अपने हाथ को साफ करना है, बिना हाथ साफ किए हुए आँख और मुंह को मत छुए। आप अगर सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है, क्योंकि आगे का जनरेशन आपके ऊपर भी देश का भार आने वाला है। इसलिए देश को बचाना है तो आपको खुद बचना होगा, हमें बचाना होगा, तभी एक उन्नत विकसित हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए सुरक्षित रहें, घर में रहें, सैनिटाइजेशन करें और जहाँ तक यत्र तत्र मिले नहीं, लोग से हाथ नहीं मिलाएं, बड़े को प्रणाम करके रहें और जो हमारी प्राचीन सभ्यता है उसको फॉलो करें। इसके बाद आज हम क्लास 6 और 7 के बच्चे के लिए जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं कॉमन चैप्टर है फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन हम बता रहे हैं, फ्रैक्शन लिखा देखो, फ्रैक्शन डिफिनीशन ए पार्ट of whole is called fraction। अब a part of whole is called fraction। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। Numerator upper part of the fraction is called numerator। Denominator log part of that fraction is called denominator। अब फ्रैक्शन न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर 4/5 4/5 is fraction। Why 4/5 is called the fraction? Because 4/5 is part of 4 हो गया। अब न्यूमरेटर अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, so डिनोमिनेटर 5। अब हम लोग क्या सीखा? फ्रैक्शन सीखा, फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब देखिए लाइक fractions having same denominator called like fractions। Fractions having same denominator 4/5, 9/5, 1/5, 10/5, 101/5। In this question all of these fractions are same denominator 5, so we can say that this is like fractions having same denominator like fraction, unlike
fraction. Fractions having different denominators called alike fractions. 5/3, 7/2, 9/6, 8/4 alike fractions हो गया। जरा सा आप इसको लिख लें, फिर इसके बाद 1 मिनट में बता रहा हूं, 1 मिनट के लिए ब्रेक दे रहे हैं आपको लिख लेने के लिए। थैंक यू वन सेकेंड, थैंक यू वन सेकेंड। अभी हम लोग लाइक फ्रैक्शन अनलाइक बता दिया था, अब आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए a fraction whose numerator is less than denominator called proper fraction। 4/7, 3/4, 9/12 improper fraction। improper fraction, a fraction whose numerator is greater than denominator called improper fraction। Next fraction, a mixture of whole and proper fraction called mixed fraction। 4/1, 7/1, 9/3/4 unit fraction। Fractions having 1 in their place of numerator called unit fraction। अब सबसे पहली बात है, देखिए मैंने क्या चीज बताया। अभी तक हमने फ्रैक्शन बताया, न्यूमरेटर बताया, डिनोमिनेटर बताया। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन बता दिया, अनलाइक बताया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction whose numerator is less than denominator is known as proper fraction। 4 and 7, numerator is 4, denominator is 7, 4 is less than 7, so this is called proper fraction। all of these examples in this question, 4/7, 3/4, 9/12, 4, 3, 9 are less than 7, 4, 12 respectively। Now improper fractions whose numerator is greater than denominator is called improper fraction। 4/3, 4 is greater than 3, 7 is greater than 2, 9 is greater than 5। in this questions 4, 7, 9 is
greater than 3 to 5 respectively. Mixed fraction of mixture of whole and proper fraction is called mixed fraction. Example 4 whole 1/3. 4 whole हो गया, whole part 4 is part of 1/3. You have to classify 1/3 is proper or improper. 1/3, 1 is less than 3. Accordingly, definitions of proper fraction, 1/3 is proper, 1/3 is proper, and this is whole. So क्या हुआ? Mixture of whole and proper. Mixture of whole and proper is called mixed fractions. Unit fractions. Fractions having 1 in place of denominator is called. 1 is called in numerator. Fractions having 1 is in place of numerator is called unit fraction. For example, 1/4, 1/4, 2, 1/8, 1/8, 1/7, 1/6, 1/100. All of these examples are example of unit fraction. 1 because place of numerator is 1. So according to definitions of unit fractions, it is called unit fraction. Thank you. Please जरा सा आप लोग लिख लेंगे, 1 मिनट का ब्रेक दे रहे, बस only 1 minute. Thank you. 1 second. Now, I am going to discuss to comparison of fraction. Comparison of fraction. While we will compare two numbers, there are 3 conditions in comparison in any cases. First, this is greater. Second, this is smallest. Third, or equal. यानी या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा या बड़ा होगा. अब अगर आपके पास जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंपेयर 4/7, 3/7, 100/7, तो एक नियम बनता है. क्या नियम बनता है कि अगर हम पहले 3 में 2 डिजिट में दिखाते कंपेयर करना है, तो यहां पर हमने क्या किया, एक बॉक्स ले. देखिए रूल, देखो रूल नंबर 1, while denominator is same, then greater numerator is greater. क्वेश्चन में हमने क्या लिखा, why denominator is same. अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर. देखो डिनोमिनेटर में 7, यहाँ भी 7 है, तो यानी डिनोमिनेटर रूल को फॉलो कर रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है, 4 इज ग्रेटर देन 3. सो ऑब्वियसली ये बात क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया. अब दूसरा, इसी को अगर हम उलट दें 7/4, दूसरा क्वेश्चन 7/3. देखो इसका रूल नंबर 2, while numerator is equal, then a smaller denominator is greater. Why numerator is same, 7 and 7. देखो both 7 और 7, तो numerator same है, तो क्या था, while numerator is equal, then a smaller denominator is greater. A smaller denominator 4 or 3, obviously 7/3 is greater
4/7। मैंने फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर को इक्वल कर दिया, सेकेंड में डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया। अब इन अदर क्वेश्चंस व्हाइल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, अगर दोनों में से दोनों कोई नहीं इक्वल हो, अगर कोई इक्वल नहीं है, इस क्वेश्चन को ही बदल देते हैं 7/4 और 3/7, ऐसा क्वेश्चन है। देखो न्यूमरेटर है इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर है इक्वल नहीं है। रूल नंबर 3, देखो वी विल चेंज इन लाइफ, पहला लाइफ फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लाइफ फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या होगा, अप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो डिनोमिनेटर से दोनों के डिनोमिनेटर को सेलेक्ट कर दो, तो 7/4 7/7 बॉक्स, 3/7 और इसका 4/4, 7 7 49/28, 12/28। अब देखो इस क्वेश्चन में मेरा हमने क्या कहा था, वी विल चेंज इन लाइफ फ्रैक्शन। लाइफ फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हैं अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहें तो भी ठीक है, या डिनोमिनेटर्स इज मल्टीप्लाइड बाय बोथ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर्स को बोथ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 7 उठाया यहाँ 7/7, अभी देखो मेरा क्वेश्चन भी वही है, ये 7 और ये 7 कैंसिल, जब ये कैंसिल हो गया तुम्हारा क्वेश्चन क्या है 4/7, 4/4 कैंसिल, क्या 3/7। इसी तरह इंक्रीजमेंट नहीं होता है, क्योंकि आप लोग ने तो अभी एक्सोम नहीं पढ़ा है, क्लास 7 और 10 में एक्सोम होता है, एक्सोम एंड थ्योरी। एक्सोम इज ए काइंड ऑफ स्टेटमेंट है व्हिच कांट प्रूव, एक्सोम को प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि पिताजी को फादर को, पिताजी को पिताजी कहते हैं, बेंच कहते हैं, कुर्सी कहते हैं, यानी दुनिया में जो भी चीज है उसका नामांकन नहीं। जैसे क्या हुआ, क्या हमने किया, अगर कलम को इसको पेंसिल कहा जाता तो अगर हमें जरूरत होती तो कहते पेंसिल देना तो मार्कर दे देता, अगर कहते कलम दे देता तो अगर इसका नाम कलम होता तो आप ये मार्कर देते। तो इस तरह से एग्जाम हुआ, ये एग्जाम हुआ, इसके कोई खास, बट थ्योरम इज ए काइंड ऑफ स्टेटमेंट व्हिच कैन बी प्रूव्ड, जिसे हम प्रूव कर सकते हैं। 2 + 3 5 प्रूव करके दिखा सकते हैं। a + b होल स्क्वायर प्लस हाउ मच, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस आइडेंटिटी इज प्रूव्ड बट एक्सोम कांट बी प्रूव्ड। तो उसी तरह से देखो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ आ गए, दोनों इक्वल। अब हमने क्या किया, लाइन फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब देखो दोनों का अब जब ये चेंज हो गया तो इस नियम को फॉलो करो, व्हाइल डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, ग्रेटर न्यूमरेटर ये है ग्रेटर हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन और भी है जो कि इसी जगह हम बना देते हैं। रूल नंबर 4, मोर देन 2 फ्रैक्शन, मोर देन 2 फ्रैक्शन है, चेंज इनटू लाइफ फ्रैक्शन। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन हमने ले लिया तुम्हारे पास 2/7, 3/4 और 15/40 ये है। अब कहता है कि इन अरेंजिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देखो हमने पहले भी असेंडिंग ऑर्डर बताया था, ASCEN असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, बोथ टर्म्स आर सेम। असेंडिंग और इंक्रीजिंग दोनों क्या होता है, सेम। असेंडिंग ऑर्डर ए पैटर्न
A pattern in which numbers and digits are arranged smaller to greater. क्योंकि 0 to 9 is known as digit, 10 to uncountless number, because digit makes a number. 11, 1 is digit, 1 is also digit, so 1 and 1 makes 11. 11 is a number. 25, 2 is digit, 5 is also digit. 2 or 2 5 makes 25. 25 is kinds of number. So a pattern, एक तरीका in which numbers and digits are arranged smaller to greater. 4, 9, 25, 36. This pattern is arranged in ascending order. Now ascending order कर दिए, अब देखो descending order, just इसका opposite कर देंगे. descending order, descending order or decreasing order. Ascending order, decreasing order, a pattern in which numbers and digits are arranged greater to smaller is called descending or decreasing order. Just 36, 25, 9, 4. ओके, ये हमने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर. तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहला, व्हाई वी वांट टू चेंज इन लाइक फ्रैक्शन, वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शंस. एलसीएम 7, 4, 40. 7, 1, 4, 2, 1, 2, 1. 7, 2, 28. Required LCM is 28. अब हम पहला लिख लेते हैं 2 by 7. 2 by 7, 7 से 24 को डिवाइड करो. 7 4 जा 28, 7 4 जा 28. 4 से मल्टीप्लाई करो. 4 2 जा 8 by 28. 3 by 4, 3 by 4, 3 by 4. 4 से डिवाइड करते हैं 7 टाइम्स. 7 by 7, 7 3 जा 21 by 28. 15 by 40. 15 by 40 into 2 by 2, 30 by 28. हमारा अरेंजमेंट हो चुका है. फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन लाइक फ्रैक्शंस. In this questions we will find 28 and 28. Denominators are same. Accordingly, definitions of rule number 1. Why denominators are same? Then greater numerator is greater, smaller numerator is smaller. Whose fraction is smaller? 28 is smaller. So 28 by 28. इससे बड़ा 21 by 28. इससे बड़ा 30 by 28. अब देखिए 28, 2 by 7. इससे बड़ा 3 by 4. इससे बड़ा 15 by 40. ये कौन सा पैटर्न हो गया? इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, इन descending order 15 by 40, 3 by 4, 2 by 7. That's all. अब आज हम आपको सारे चीज बता दिए. अब देखो सारे चीज बताने के बाद आज मैंने क्या क्या बताया.
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्लासीफाई किया, डिफिनेशंस जो था उसको भी मैंने क्लासीफाई किया। इस बेस्ड पर RS अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 16 निकालिएगा, या फ्रैक्शन चैप्टर आप निकाल दो और इसको बनाओ। जो नहीं बनता हो हमसे क्वेश्चन सेंड करो। व्हाट्सएप पर तो जुड़े नहीं हो सकता है कि व्हाट्सएप पर तुम लोग अगर ग्रुप तैयार करो तो 6 और 7 का भी हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं और उस पर क्वेश्चन सेंड करो। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके हर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आर सेंड बाय यू। दिस इज my responsibility to solve your problems। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे स्कूल प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि आपके हर क्वेश्चन जहां कहीं भी दिक्कत हो इस वैश्विक महामारी में आपके साथ हैं, आप मेरे साथ चलने की कोशिश करें। तीसरा चीज, आप लोग अगर वीडियो देखते हो तो इसको शेयर करो, थोड़ा लाइक करो और एक टीचर के लिए और कुछ जरूरत नहीं है। अब तो उसके बाद लास्ट में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो, घर में ठीक से रहो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, घर में रहना है और इधर उधर जाना नहीं है। सैनिटाइजेशन का यूज करें, विदाउट सैनिटाइजर हाथ मुंह नहीं रखें। कोविड-19 से हमें भी बचना है, देश को बचाना है। हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। पहले देश उसके बाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।